Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the show. I'm your host Riaz Gul. Every Tuesday, 6 to 7 p.m., I do the live UK immigration law show where I take your phone calls and share the immigration law and human rights. If you or any family member have any issue or want any update about the immigration law, you may call us. In case your matter is pending with the Home Office in the court or you want any detailed advice, then I humbly request all of you is better if you can email to us or you can come and visit us. Then I will be in a better position to, after going through all the paperwork, to give the appropriate advice. Today, I would like to just share just small things about the student visa, because a lot of people they ask in the questions, especially for the tier 4 students, the people who came in the UK before the June or September this year, and if they completing the course or any degree or the master or the graduation before the June, there's a lot of people they have questions relevant to this matter. At the same time, I'm much appreciate to all of people who are sharing and following on our social media and appreciating our services. The student who will come in the UK or who came in the UK just only from the September 2020, after completing his course, which is at least 1 year's master, graduation for 3 years or the PhD, then he will be eligible to apply for the post-study work. But if any persons came before this time and completing his course before the summer 2021, then it means unfortunately, because their course and their student will be not going to be fall under the new regulation which is upcoming for the PSW. So keep in mind just one point, I think this is a principle. Say if you are completing your course in September 2021, then you will be eligible to apply for the post-study work, and then of course is a further you can apply for the extension. Otherwise, unfortunately, you need to leave the country or you can apply on other category. But my understanding is, unfortunately, if anybody completing by the December or January, February, any course which is a master or the graduation or PhD, he wouldn't be fall for the post-study work category. So we'll see, लेते हैं आज की फर्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी मेरे भाई, आप लाइव हैं, बोलें सवाल क्या आपका? अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी भाई। सर, मेरा सवाल ये है कि मेरे जो 10 साल कंप्लीट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर मई में, राइट। तो अभी मेरी एक्सटेंशन मैंने अप्लाई कर दिया है 20 नवंबर को, राइट। तो अभी अगर मेरे वीज़े को टाइम लग जाता है 6 महीने, अगर उसमें हो जाए तो मैं अपनी एप्लीकेशन को उसमें सेटलमेंट में चेंज करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता? अब आपने कौन से वीज़ा अप्लाई किया मेरे भाई? FLR FP अप्लाई किया ना, 2.5 ईयर मेरा वीज़ा, नेक्स्ट एक्सटेंशन अप्लाई की। ओके, थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, ये एक काफ़ी जनरल क्वेश्चन है, आप इसको आई बिलीव कि आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे। लॉ ये कहता है कि अगर आप यूके के अंदर कॉन्टीन्यूसली लीगली 10 ईयर्स गुजारते हैं तो आप क्वालिफाइड करते हैं अंडर द लॉन्ग रेजिडेंस 10 ईयर्स रूट फॉर द ILR। अब उस जो 10 ईयर्स रूट है या 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी लीगल रेजिडेंसी है, उसमें ये कोई शर्त ये है कि आपका कभी भी वीज़ा एक्सपायर ना हुआ हो और आपने रिगार्डलेस आपने पहले स्टूडेंट टीयर 1 पे थे, फिर टीयर 2 पे गए, फिर उसके बाद आप डिफरेंट कैटेगरीज़ में, अगर आप हमेशा प्रायर टू एक्सपायर योर लीव आप अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करते रहे और विद इन कंट्री आपकी इन टाइम आपकी एप्लीकेशन अलाउ होती रही, तो आपकी जो 3C है या आपकी जो लॉन्ग रेजिडेंसी कॉन्टीन्यूस ऑफ लीगल स्टेटस इन द UK, वो आपका कैरी ऑन रहेगा और उसके बाद आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप 10 साल पूरी करते हुए एप्लीकेशन करें। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अगर आपकी 10 साल पूरे हो रहे हों, कोई एप्लीकेशन आपकी पेंडिंग हो, जब तक वो डिसीजन नहीं आता हो तो तब भी वो एप्लीकेशन आपका लीगल स्टेटस कंसिडर होगा और आपके पास राइट होगा कि अगर आप पेंडिंग एप्लीकेशन के अंदर
आप अपनी वेरिएशन ऑफ लीव करेंगे, अप्लाई करेंगे और 10 साल पूरे होते हुए अप्लाई करेंगे। अगर ये डिसीजन नहीं आता इस एप्लीकेशन का तो यू अब बिलीव कि यू विल बी इन सेफ। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली किसी ने एप्लीकेशन डाले और उसके पीछे रिफ्यूज़ हो जाए, उसको राइट अपील ना हो या राइट अपील हो तो अपील एग्जॉस्ट हो जाए या फिर वो जुडिशरी रिव्यू में चला जाए, तो फिर अनफॉर्चुनेटली जो 3C है वो ब्रेक हो जाती है। इसी तरीके से अगर आपका केस पेंडिंग है और आपको अगर राइट ऑफ अपील नहीं मिलता, एडमिशन रिव्यू मिलता है, तो एडमिशन रिव्यू जब तक आपका पेंडिंग है कोर्ट के अंदर आप लीगल कंसिडर होंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपका एडमिशन रिव्यू भी रिफ्यूज़ हो जाता है तो देन फिर आपकी 3C ब्रेक हो जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं। अगर आपका एवरीथिंग इज़ इफ़ एंड बट के साथ कंसिडर है सब्जेक्ट आपकी चल रही चीज़ें, वेट करें जो डिसीजन आएगा। अगर 10 साल आपके पूरे हो रहे हों तो आपके पास राइट है कि जो लाइफ इन यूके B1 पास करें और आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन के दौरान अपनी वेरिएशन ऑफ एप्लीकेशन करते हुए आप ILR अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी फरमाइए सर। वालेकुम सलाम जी। सर जी मेरे हेरन हुई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਕੱਲ। ठीक, थैंक यू मेरे भाई, आपका शुक्रिया। कोर्ट का डिसीजन आया आजकल, आपको पता है कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है। टाइमिंग पे मैं कुछ आंसर नहीं कर सकता, लेकिन नॉर्मली 2 से 8 वीक के अंदर अंदर आपको लेटर आ जाता है कि आपकी अपील अलाउ हो गई है, तो आपको ये आपका स्टेटस आपको ग्रांट करते हैं। या अगर आपको डिटर्मिनेशन मिल गई है अगर जज की तरफ से और आपकी अपील अलाउ हो गई है, तो फिर कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं होम ऑफिसर को कंसिडर करते हुए। अब जैसे आपका केस रिफ्यूज़ हुआ था, आप अपील में चले गए, इसी तरीके जब आपकी अपील आपकी फेवर में अलाउ हुई तो होम ऑफिस के पास राइट है कि उस डिसीजन को चैलेंज कर सके। लेकिन नॉर्मली वो 28 डेज़ होते हैं, होता तो 14 डेज़ है, लेकिन अप टू 28 डेज़ तक सब टाइम वो लेट एप्लीकेशन भी कर देते हैं। लेकिन अगर नहीं होता 28 डेज़ और उसके बाद फिर होम ऑफिस रिकमेंडेशन देता है कि जो उनका ट्रेजरी सोलिसिटर होता है होम ऑफिस को कि हम लोगों ने इसको आगे परसू नहीं करना चाह रहे, तो इसके केस को अकॉर्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द जज प्लीज़ वीज़ा अलाउ किया जाए। लेकिन इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 3 से 6 माह लग जाते हैं। आजकल ये ड्यू टू द लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक है, बट वेट करें और अपने वकील के साथ जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसके साथ आप टच में रहें, ताकि अगर जब भी कोई डिसीजन आए और आपको बता सके। और लास्टली आजकल काफ़ी सारे जो डिसीजंस हैं वो बाय ईमेल आ रहे हैं। मेक श्योर करें कि अगर आपकी अपनी या आपके सोलिसिटर की जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव है उसकी जो ईमेल गई हुई है उस पर देखते रहें। समटाइम ये ना हो कि आपको ईमेल आए वो जंक में चले जाए और आपको पता ना चले। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो, हाँ सत श्री अकाल सर। जी मैडम वेलकम, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या है जी आपका। हाँ हेलो जी मैडम फरमाइए। हाँ जी सर, मैं वीजा एक्सटेंशन अप्लाई किया था। राइट पे हूँ मैंने एंड ऑफ सितंबर अप्लाई किया था। तो अभी कितना मतलब टाइम लग जाएगा, प्रोसीजर है फिंगर्स के लिए, मतलब अभी ईमेल लेटर नहीं आया था। अच्छा ओके मेरी बहन, अभी तो सितंबर में अप्लाई किया, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने भी नहीं, 2 महीने हुए हैं। आप वेट करें। नॉर्मल एप्लीकेशन जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है, जो अंडर द इमिग्रेशन रूल जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो तकरीबन 6 माह की गवर्नमेंट की गाइडेंस पॉलिसी है कि हम 6 मंथ में डिसाइड करेंगे। अभी 2 माह हुए हैं, वेट करें, क्योंकि आजकल सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन हैं। अगर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं भी आया तो इसे मैटर नहीं करता, क्योंकि आपकी जब एप्लीकेशन सबमिट हुई थी आपके अकाउंट से पैसे चले गए। अब इसका मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन चले गई। अच्छा, होता क्या ये था कि जो पहले प्रोसीजर था पेपर एप्लीकेशन का, उस वक़्त जो गवर्नमेंट की या होम ऑफिस की जो पॉलिसी थी या उनकी डायरेक्शन थी या प्रोटोकॉल था, वो ये कहता था कि अगर आप कोई एप्लीकेशन करें, क्योंकि वो पेपर पे होती थी, बाय पोस्ट करते थे, तो वो नॉर्मली 28 डेज़ के अंदर अंदर रिस्पॉन्सिबल थे या बाउंड थे कि आपको लेटर भेजें कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, इज़ अंडर प्रोसेस नाउ, एंड जो भी रिज़ल्ट आएगा आपको बता देंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि एप्लीकेशन जा ही ऑन रही हैं,
सबमिट होती है, सबमिशन कन्फर्मेशन आपके पास आ जाता है, साथ आपकी फ़ीस कट लेते हैं, वो चार्ज कर लेते हैं। और थर्ड ये है कि वो सारी कम्युनिकेशन आजकल ऑनलाइन है, तो अगर आपको कोई इनफॉर्मल कोई फॉर्मली कोई आपको एक्नॉलेजमेंट ना भी आए, इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, उन्होंने रिसीव कर ली है, इज़ अंडर द प्रोसेस, लिहाजा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि कभी भी कुछ होता है तो आप ये जो कन्फर्मेशन सेंड कन्फर्मेशन ईमेल है, आप इसके ऊपर रिलाई करते हुए, अगर वो कहते हैं कि हमें मिली नहीं, लेट हो गया, तो आप इन तमाम एविडेंस के ऊपर केस को आर्गूमेंट कर सकते हो। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। गुल भाई, मैं राजा बात कर रहा हूँ। गुल भाई, मेरे यहाँ पे ये रेफ्यूजी स्टेटस है, तो जब मुझे रेफ्यूजी स्टेटस मिला था, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो बाद में मैंने शादी की है दूसरी कंट्री में, तो मेरी वाइफ इधर आ गई थी। मेरा एक बेटा है, जब वो मेरा बेटा पैदा हुआ था तो मेरे पास 2 साल का वीजा रहता था, तो होम ऑफिस ने मेरे बेटे को 2 साल का वीजा दिया था। मैंने इंडेफिनेट ड्यू है, तो मुझे ये बताएं कि जब मैं इंडेफिनेट अप्लाई करूंगा तो मेरे बेटे को उसकी एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी या उसको भी इंडेफिनेट? और बेटे की एज क्या है? बच्चे की एज क्या है? जी, बच्चे की एज क्या है? 1.5 ईयर। मुझे ये बताएं कि उसने आपको एज ए रिफ्यूजी, एज ए फैमिली यूनिट ज्वाइन किया है? जब मैंने या रीयूनियन फैमिली मैंने पेमेंट की थी जब मैं इस मुल्क में थी। सॉरी, आई एम सॉरी, आपके असाइलम क्लेम करने से पहले आपकी शादी हुई थी और उस रिलेशन से बच्चा पैदा हुआ है? नहीं, शादी से पहले असाइलम जब मुझे मिला था, मेरी शादी नहीं हुई थी, बाद में हुई थी शादी। ओके, थैंक यू। ओके मेरे भाई, टीवी पे आंसर सुने। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन तमाम व्यूवर्स के लिए, ये एक बड़ा ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है। सम टाइम हम भी ह्यूमन बीइंग हैं, उसको थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं। अच्छा, लॉ ये कहता है कि अगर आपने असाइलम क्लेम करने से पहले आप शादीशुदा थे, बच्चे थे, जब आपको असाइलम किया, आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, तो आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को एज ए जॉइन टू द फैमिली यूनियन अंडर द रिफ्यूजी स्टेटस आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसके अंदर ना तो आपको इनकम शो करने की ज़रूरत है, ना आपको बाकी चीज़ें करने की, और ऑटोमेटिकली उनके पास राइट है कि वो आपको ज्वाइन कर लें। लेकिन जो मेरे भाई ने बताया, अब इस केस में क्या है कि अगर कोई शख्स जब यहाँ पे आता है, वो सिंगल है, उसने असाइलम क्लेम कर लिया, उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिल गया, और उस वक़्त अगर जब वो अपने शादी करेगा किसी कंट्री में या किसी और आउट ऑफ द यूके या नॉन सेटल्ड पर्सन के साथ, तो उसको तमाम और रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं जो सेटल पर्सन की हैं, क्योंकि ये रिफ्यूजी स्टेटस मिलने के बाद रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। लिहाजा आप बिलीव कि जब आपने अपने बच्चे की या अपनी वाइफ की एप्लीकेशन की होगी, आपने इनकम शो की होगी, और उन्होंने इंग्लिश अपना सर्टिफिकेट साल लगाया होगा, और उनको 2.5 साल का वीज़ा मिल गया। जब आपको इंडेफिनिट मिलेगा तो आपने उनके 5 साल फर्दर पूरे करने हैं, क्योंकि वो अंडर द FM आए हैं अब फैमिली रूट के अंदर। लिहाजा आपको के बच्चे को और वाइफ को यहाँ पे यूके में 5 साल पूरे करने के बाद इंडेफिनिट मिलेगा। तो सो कीप इन माइंड कि जब आप रिफ्यूजी स्टेटस के वीज़े पे अप्लाई करोगे तो दो कि आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी। लाइफ इन यूके टेस्ट भी पास नहीं करोगे तब भी अप्लाई कर सकते हो, B1 नहीं पास कर तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आपकी वीज़ा मिलेगा इंडेफिनेट, तो आपकी वाइफ ने आपको ज्वाइन करना एज ए डिपेंडेंट ऑफ द सेटल पर्सन विच इज़ ILR, तो फिर आपकी वो तमाम इनकम, उसके पास सर्टिफिकेट और ये तमाम चीज़ें अपने जो सेटल पर्सन के डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट हैं वो सारी पूरी करनी है। इन शॉर्ट आपके आंसर के लिए यस, आपके बच्चे को और आपकी वाइफ को एक्सटेंशन लेनी पड़ेगी और 5 साल पूरे करने के बाद वो इंडेफिनिट अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मैं यूके में हूँ, ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मैं अपने डैड के लिए विजिट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो उसका ये है कि मेरे पास यहाँ पे बेडरूम जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है। मैं उनका अगर पूछ रहा हूँ कि अगर मैं होटल में रिजर्वेशन उनका करवाऊँ, बुकिंग करूँ, रिजर्वेशन में ये है कि मुझे पहले से नहीं उसके पड़ेंगे, बुकिंग है वो पैसे देने पड़ जाएंगे, तो
ये मैंने सुना था थोड़ा। राइट, थैंक यू, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरे भाई जनरल से बता देता हूँ कि आप सिर्फ अगर अपने फैमिली को बुला रहे हैं, यस आपके पास दोनों राइट्स हैं, घर में उनको अकोमोडेट कर लें या होटल में करवा दें, मैटर डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आजकल थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि लॉकडाउन है। अगर कुछ एप्लीकेशन यहाँ अगर तो उनका सिर्फ मकसद आने का वेरी जनरल है कि मिलने आ रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट आइडियल टाइम के अप्लाई किया जाए। आप वेट कर लें, जब नॉर्मल हालात हो जाएं तब अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल था, यस आपके पास राइट है, अगर घर में अकोमोडेशन है तब भी, अगर घर में आपके पास सफिशिएंट या एम्पल अकोमोडेशन नहीं है तो आपके पास राइट है कि होटल की बुकिंग करवा दें और बोलें कि वो हमारे पास आएंगे, स्टे करेंगे। लेकिन केस आपका वीक हो जाएगा इस वजह से कि वो आपके पेरेंट्स हैं, मिलने आपको आ रहे हैं, होटल में स्टे करेंगे और बाकी चीज़ें उसको थोड़ा सा केस को वीक कर रही हैं। आइडियली होता है कि अगर फैमिली विज़िट हो तो फैमिली के साथ स्टे करना चाहिए। होटल में स्टे करने का मतलब ये है कि उनके लिए बेटर होगा कि वो जनरल विज़िट अप्लाई करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हाँ जी भाजी। हाँ जी भाई जी। मेरे ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ। हाँ जी। ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈਗਾ ਈਯੂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਮਿਟ 6 ਮੰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਈਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਰਾਈਟ? हाँ जी। और बाकी फैमिली को की वीज़ा थोड़े डिपेंडेंट है? वो मेरी वाइफ को इंडियन पासपोर्ट है तो बच्चों को भी यूरोपियन पासपोर्ट है। ठीक, थोड़ी कॉल का शुक्रिया। जिन्ने भी लोग कोई यूरोपियन नैशनल या उन्होंने डिपेंडेंट या उन्होंने एक्सटेंडेड फैमिली मैंबर जिहड़े लोग यूके छुण आए आ या आ रहे आ, वो सारे प्री सैटलमेंट वीज़ा अप्लाई करनगे। सैटलमेंट वीज़ा उदों अप्लाई होंदा अगर तुसी 5 साल इत्थे गुजार लए होण, दैन यू कैन अप्लाई फॉर द सैटलमेंट। तुहानूं दोनों ही राइट आ, तुसी ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हो या ऐप के जरिए जाके भी अप्लाई कर सकते हो। अगर तुसी रिसेंटली आए हो और लैस दैन 5 ईयर तुहानूं इत्थे होए आ, दैन तमाम फैमिली नूं बाय द 31 दिसंबर तो पहलों तुहानूं चाहीदा कि अपने इत्थे प्री सैटलमेंट अंडर स्कीम ते जाके अपना वीज़ा अप्लाई कर दिओ। अगर तुहानूं खुद ईजी लगदा तो वैल एंड गुड, वरना अगर जिथे भी रह रहे हो या जिन्होंने फील करते हो सोलिसिटर मिलो, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिओ और जाके अप्लाई करो। अच्छा, लेकिन ये जस्ट अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन कुछ इशू ये आ रहे हैं, एज ए जनरल डिस्कशन करते हैं। इशू अब ये आ रहा है कि जो यूरोपियन यूके में अब आ रहे हैं या जिनके डिपेंडेंट अब आ रहे हैं, उन पे जो कंडीशन ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे रह रहे हैं तो आपने अप्लाई करना है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपने टीटीआर को एक्सरसाइज कर रहे हो और आप यहाँ पे रहना चाहते हो फॉर द परमानेंट इन द यूके। इशू क्या आया कि जब क्योंकि ब्रेक्जिट की वजह से कुछ ज़्यादा ट्रैफिक हो गई, काफ़ी लोग आ गए और ऊपर से नेशनल इंश्योरेंस की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अब क्या है कि 3 ऑप्शंस होती हैं किसी भी यूरोपियन को या उसके डिपेंडेंट को टू एस्टेब्लिश के वो यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करना चाह रहा है। एक, वो यहाँ पे जॉब कर रहा है। नंबर 2, वो सेल्फ सफिशिएंट है कि उसके पास फंड्स हैं लेकिन वो यहाँ पे आया है और अपने आप को अंडर द प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्कीम जो भी कैटेगरी में फॉल करता है उसमें अप्लाई करना चाहता है। नंबर 3 ये है कि अगर आप यू आर सीकिंग द जॉब, आप ट्राई टू फाइंड द जॉब, उस सूरत में भी आपके पास राइट है। क्योंकि प्रॉब्लम देखें, डेट चेंज नहीं हो सकती, आपको नेशनल इंश्योरेंस के नंबर के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, आपने एप्लीकेशन करनी है, अदरवाइज यू विल बी द ओवर स्टेज, आपको आउट ऑफ टाइम चले जाओगे। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? तो इन 3 ऑप्शन में से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं या इवन आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो तब भी अप्लाई किया जा सकता है। सब्जेक्ट टू आपके पास वो तमाम जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो तमाम लगाएंगे ताकि ये ना हो कि आपको डेट मिले ना, टाइम उस बार हो जाए और उसके बाद फिर आप जब एप्लीकेशन करोगे तो फिर एक लंबा प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए मेक श्योर करें कि उस फॉर्म को जब आप इंतहाई डिटेल या डेप्थ से पढ़ते हो तो ये चीज़ एक इस्टेब्लिश होती है कि अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हो
और आपकी जो इंटेंशन है टू बी सेटल इन द यूके फॉर द परमानेंट, तो वो कम से कम उस कैटेगरी में आप इमिग्रेशन ऑफिसर को सेटिस्फाइड कर सकते हो, जो कि लॉ इस बात की इजाज़त दे रहा है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए मेरे भाई, आप लाइव हैं। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम भाईजान। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਏ ਸੀ, ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੈਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਆਰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ, ਲੈਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੈਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪੇਜ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਥਰਡ ਪੇਜ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 12 ਮੰਥ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कि ਤੁਸੀਂ अपनी नेशनलिटी अप्लाई करो। अच्छा होता क्या है ये कि जब अगर यूरोपियन कोई यहाँ पे रह रहे थे या रह रहे हैं, वो उन्होंने 5 साल गुजार लिए, 6 साल गुजार लिए, इवन 10 ईयर्स गुजार लिए और उन्हें अपनी सेटलमेंट या उनको ज़रूरत महसूस नहीं हुई या उन्हें अप्लाई नहीं किया, बस उसका क्वालिफाइड कर गए थे लेकिन अप्लाई नहीं किया। अब जब आप एप्लीकेशन करते हो फॉर द सेटलमेंट के लिए तो इमिग्रेशन वाले आप पे लेटर नंबर 1 आपको पीआर ग्रांट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको बताते हैं कि यू आर क्वालिफाइड ऑन दिस डेट, माइट बी 1 ईयर्स बिफोर, 2 ईयर्स बैक डेटेड। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना होगा कि अगर आप पहले क्वालिफाइड करते थे तो उस डेट से 12 मंथ के बाद आपके पास राइट है कि आप नेशनलिटी अप्लाई करें। आप अपना लेटर चेक कर लें, अगर आपको 9 माह का वीज़ा मिला है या 8 माह का, लेकिन इसके बावजूद अगर वो डेट बैक डेटेड है तो आप चेक कर लें, तो आप उस डेट के 12 मंथ के बाद आप नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड करते हैं। आपको ज़्यादा बजाय 9 महीने वेट करें या 8 महीने, अगर अभी भी आपका टाइम पूरा हो रहा है तो अभी अपनी नेशनलिटी की या सेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। मेरा एक सवाल था भाई साहब, मैंने शादी किया है 2016 में, राइट। 2016 में शादी, फिर फॉर रीजन मैंने उधर गया नहीं हूँ, फिर काम शुरू किया है, अभी तकरीबन 2 साल हुआ है, मैं फुल काम कर रहा हूँ। मैंने अप्लाई किया, उनके पास गया तो अप्लाई करो बीबी बुलाने के लिए इधर, फिर उन्होंने बोला कि तूने 2016 में गया है, अभी तक इस सालों में नहीं गया है, इसलिए तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा। आपका क्या जवाब है? ये नहीं ओके, मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ कहाँ थी मेरे भाई? 2016 से अभी तक, अभी मैं अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे भाई आपकी वाइफ कहाँ रहती है? मेरी वाइफ काबुल में है। काबुल में। और मुझे बताएं कि आपने अप्लाई किया था, वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया या अभी पेंडिंग एप्लीकेशन है आपकी? नहीं, कभी अप्लाई किया है कि मेरा मैं ताकि आता 16 मंथ्स हुआ है कि मैंने काम शुरू किया है, काम पहले काम नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मैं समझ गया मेरा भाई। मेरे भाई मुझे बताओ कि अप्लाई अपने मेरे भाई मुझे बता दे कि आपने अप्लाई कर दिया या भी करना है? करना है, मैंने अप्लाई करना है क्योंकि एक वकील ने मुझे बोला कि अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तुम गए नहीं उधर। ठीक। आप टीवी पे आंसर सुने मेरा भाई प्लीज। राइट मेरे भाई थैंक यू, आपने कॉल किया फर्स्ट ऑफ ऑल। अब 2 चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। अब मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है, मुझे ये बताएं कि जब आपने शादी की थी, अगर तो आप 2016 में अफ़गानिस्तान गए थे काबुल में और जाके वहाँ शादी की थी, तो कोई सादा तबीयत वकील भी आपको ये नहीं कहेगा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते।
हाँ, मैं समझता हूँ कि आपको उसी वक्त करना चाहिए था, गैप आ गया 5 साल का। वेरी रीज़नेबल एविडेंस है, ये ग्राउंड्स हैं कि आपको जॉब नहीं थी, अब जॉब स्टार्ट की, अब अप्लाई करना चाह रहे हो। तमाम अगर हम 4-5 साल के जैसे उनसे बातें करते हो, कम्युनिकेशन प्रूफ देते हैं, या उनको कोई लेटर लिखते हो, ईमेल करते हो, पैसे भेजते हो, ये तमाम जो कम्युनिकेशंस एंड कनेक्शन आपका जो है वाइफ के साथ, वो प्रूफ देते हैं, तो इस बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि क्या आपने 2016 में शादी कोई फोनिक निकाह वगैरह या रिलीजियस मैरिज तो नहीं की? अगर आप शादी के लिए उस दिन नहीं गए थे तो फिर शायद या शायद नहीं, डेफिनेटली फिर सॉलिसिटर साहब राइट हैं। द रीज़न इज़ कि फोनिक जो निकाह है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी रिलीजियस मैरिज जो आउट ऑफ कंट्री, जो नॉन सेट जहाँ पे ब्रिटिश पीपल जहाँ करते हैं, वो आपके इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो शायद मैं अनफॉर्चुनेटली एडवाइस नहीं कर सकता, लेकिन इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि फोनिक सेरेमनी या रिलीजियस सेरेमनी वीज़ा पर्पज़ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। अब आप खुद चेक कर लें, अगर तो आप वहाँ जाके आपने निकाह किया था और 4 साल अप्लाई नहीं कर सके, अब आपकी इनकम हो गई है, अब अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल आपके पास राइट है, अप्लाई करें। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से 5 मेजर चीज़ें हैं। आपकी इनकम होनी चाहिए 18,600 पाउंड, जो आपके पास पे स्लिप हो और मनी आपके बैंक में आती हो, सोर्स ऑफ इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम। सेकंड, आपके पास अकोमोडेशन हो, मैरिज आपकी हुई थी, सर्टिफिकेट हो। और थर्ड ये है कि आप रेगुलर कम्युनिकेशन करते हो। और नंबर 4, आपके पास एम्पल अकोमोडेशन है कि आप उसको यहाँ पे स्टे करवा सकते हो। एंड फाइनली आपकी मिसेज ने वहाँ से इंग्लिश सर्टिफिकेट पास करना होगा, जो कि इक्विवेलेंट टू द A1 है, और वहाँ से उसने TB टेस्ट करना होगा। अगर ये चीज़ें पूरी होती हैं तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहते हो कि आपने फ़ोन किया है, फिर माई सजेशन कि इज़ बेटर कि आप किसी और एक सेकंड ओपिनियन के तौर पे किसी और वकील से भी मिल लें, और अगर ना भी मिलें तो फ़ोन के निकाह के तौर पे अप्लाई करना ना तो बाय लॉ वो एक्सेप्ट करेंगे, और मैं शायद एडवाइस भी नहीं करूँगा। फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। यू नीड टू ट्रैवल टू द काबुल, शादी करें, डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे हैं, वेरी नेक्स्ट डे उसके अप्लाई कर दें। आई बिलीव के शी विल गेट द वीज़ा एंड कैन जॉइन यू इन द UK। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा ये है कि मेरे सिस्टर इन लॉ हैं, वो फ्रांस में, उन्होंने 2015 में सैलम लिया था, तो उन्हें कार्ड मिल गया था। उनके बाद उनके मेरे भाई और बच्चे भी यहाँ पर आए हैं। मेरे भाई के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और उसके साथ यहाँ का पेरिस फ्रांस का जो है वो कार्ड है, रेजिडेंस कार्ड उसे यह कहते हैं, लीव टू रिमेन। तो क्या वो UK में आके रजिस्टर्ड हो सकते हैं नए ब्रेक्सिट कानून के मुताबिक? आपके भाई किसके पास यूरोपियन नेशनलिटी है? मेरे भाई के पास कार्ड है और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। ओके, भाभी के पास क्या है, बच्चों के पास क्या है? उनके पास, भाभी के पास भी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट है, सबके पास कार्ड है। ओके, और उनका जो वीज़ा है वो अपने बेस पे या आप पे डिपेंडेंट के तौर पे मिला हुआ उनको? उन्होंने रीयूनियन किया था, क्योंकि भाभी ने आके यहाँ पर सैलम किया था, तो फिर उनके बच्चे जो रीयूनियन में आए हैं। ओके मेरे भाई, मैंने शायद अभी बताया, फिर दोबारा रिपीट करता हूँ। UK जो यूरोपियन सेटलमेंट, प्री सेटलमेंट या PR या प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट की जो एप्लीकेशन है या कैटेगरी या स्कीम है, ये उन लोगों के लिए है जो यूरोपियन नेशनल हैं, उनके डिपेंडेंट हैं या उनके एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं। अब प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपके ब्रदर की जो फैमिली है उसमें ना तो आपका भाई यूरोपियन है, ना उसके बच्चे यूरोपियन हैं। तो अगर उनको किसी कंट्री में लिमिटेड लीव टू रिमेन मिली है, वहाँ पे कार्ड मिला है या वहाँ पे PR भी मिल गई है, तो जो PR मिलती है उसको परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं, वो अपने उस ओन कंट्री की होती है। उससे नेशनलिटी और PR में बहुत सारा डिफरेंस है। आप UK में देखें कि अगर ब्रिटिश नेशनल हैं या आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, ये 2 डिफरेंट आपकी आइडेंटिटीज़ हैं, 2 डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। इसलिए अगर कोई बंदे यूरोप में विदाउट यूरोपियन वीज़ा हैं, जब वो UK में आएंगे तो कोई और एप्लीकेशन में आ सकते हैं, लेकिन प्री सेटलमेंट और सेटलमेंट कैटेगरी में उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। अब मेरे ख्याल में
क्योंकि उनको वहाँ पे लीव मिली हुई है, बेटर है कि उनको बोलें कि वहाँ पे नेशनलिटी लें और उसके बाद जो भी लॉज होंगे उसको फॉलो कर सकते हैं, या कोई ऑप्शन जो फ्लेक्सिबल हो कंसिडर की जा सकती है। लेकिन जो आपका सवाल था कि क्या दिसंबर से पहले वो आके यहाँ पे प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उनके लिए मुश्किल होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए सर, टीवी बंद कर दें, फ़ोन पे बात करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आवाज़ आ रही है, बस टीवी पे ना सुने, फ़ोन पे बात करें जी प्लीज़। ओके, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ग्रेजुएशन रेफरेंस है, और रेफरेंस है कि मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ और जो मेरी वाइफ है ये 2010 में इन्होंने यूके में मुझे ज्वाइन किया था, और इनके पास जो वीज़ा था FLRM वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, साथ में मेरे दो एक सन है और एक बेटी है। जो बेटा है उसकी उम्र अभी राइट नाउ 18 ईयर्स है, जो अबव हो गई है 2 मंथ, और बेटी की जो एज है वो 15 है। तो इनका रेजिडेंसी के लिए हमने अप्लाई किया था ILR, तो ILR इनका अभी मिल गया है ना रिसेंटली, अभी नवंबर में। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को क्या 12 मंथ वेट करना पड़ेगा फॉर नेचुरलाइजेशन के लिए, या ये डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? पर दोनों बॉर्न यहाँ नहीं हुए, ठीक, मतलब पाकिस्तान में बॉर्न हुए। अगर तो कोई यहाँ पे राइट, ठीक भाई, आप टीवी पे आंसर सुने। थैंक यू मच, अप्रिशिएट आपका टाइम। बस शॉर्ट आंसर करता हूँ बिफोर द ब्रेक। कोई बंदा जो यहाँ पे ब्रिटिश है, जब उसके बच्चे या उसकी वाइफ उसको एज ए डिपेंडेंट ज्वाइन करते हैं, वो 5 साल पूरे करने के बाद जब उनको इंडेफिनिट मिलता है, तो उनके पास राइट है कि विदाउट वेटिंग फॉर 12 मंथ इमीडिएटली भी चाहें तो वो नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर सकते हैं। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे लगा के अप्लाई कर दें, आप क्वालिफाइड करते हैं और आपको यहाँ पे नेशनलिटी मिल जानी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम भाई। रियाज भाई, मुझे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज। सर मैं 8 साल से सालम पे था यूके में, राइट। तो 8 साल के बाद विद फैमिली बच्चों के साथ था मैं। 2 बच्चे हैं मेरे, राइट। एक बच्चा बॉर्न इधर है, और इसमें मुझे होम ऑफिस ने 8 साल के बाद वीजा ग्रांट किया है, लिमिटेड लीव टू रिमेन अंडर द 10 ईयर रूल। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, पर अभी 2.5 साल है इसके ऊपर। हाँ जी, मुझे नहीं पता ये 10 ईयर का रूट है, कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ है कि 2.5 साल के बाद मुझे 2023 अप्रैल में ये रिन्यू करो। इसमें सर एक बात लिखी हुई है, यूनाइटेड किंगडम फॉर अ रीजन नॉट कवर्ड इमिग्रेशन रूल। सर ये क्या होता है, मुझे नहीं पता चल रहा कि इन्होंने ये क्या नॉट कवर्ड बाय इमिग्रेशन रूल्स। तो और ये वीजा क्या, कौन सा वीजा है, मुझे नहीं समझ आई अभी तक, कोई इतनी डिटेल नहीं है इसके अंदर मेरे पास। राइट। कोई और सवाल क्या आपका सर? नहीं पता कि मैं ट्रैवल कर सकता हूँ कि कंट्री में नहीं कर सकता। और आपका सवाल क्या है सर मेरे भाई? और कोई सवाल आपका है? आई थिंक आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। देखें, आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपने असाइलम क्लेम किया था और 8 साल के बाद आपको एक वीज़ा मिला। अब 2 ऑप्शंस हो सकती हैं, क्या आपको होम ऑफिस की तरफ से वीज़ा ग्रांट हुआ है, या आपका केस रिफ्यूज़ हुआ और फिर आप कोर्ट में गए तो जज ने आपको एक अपील अलाउ की है और उसके बाद आपको वीज़ा मिला। ये 2 ऑप्शंस पे बात करता हूँ। अगर तो आपका असाइलम पेंडिंग था और असाइलम पे केस लड़ रहे थे और उसी को कंसिडर करते हुए वीज़ा दिया, तो वो कम से कम 5 साल का होता, लिखा आता, और कुछ ना भी लिखा आता तो कार्ड पे कम से कम रिफ्यूजी स्टेटस लिखा आना था। नंबर सेकंड ऑप्शन ये आती है कि अगर आपने एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, फिर आउट ऑफ अपील मिला था, कोर्ट में गए थे, तो जज ने जो आप लफ्ज़ बोलने की कोशिश कर, आवाज़ काफ़ी कट हो रही थी, मुझे लगता है कि आप कह रहे थे कि आप यू नो कवर अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। इट मीन्स कि आप उन्होंने कहा कि आपका जो कैटेगरी है 2 के अंडर द इमिग्रेशन रूल्स कवर नहीं हो रहा है,
फिर भी हम आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस को कंसिडर करते हुए आपको लिमिटेड लीव टू रिमेन दे रहे हैं। अगर ये वर्ड हैं तो तब भी आप 10 साल के रूट के अंदर हो। अब इन दोनों सूरतों में वेदर कि आपको रिफ्यूजी स्टेटस मिला या आपको 10 साल का वीज़ा मिला और 10 साल की कैटेगरी के अंदर वीज़ा मिला 2.5 साल का, सवाल ये आएगा कि अभी जस्ट मंथ बिफोर, 6 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर यू बिन क्लेमिंग कि अगर मैं वापस जाऊंगा मेरी लाइफ को ख़तरा है एंड फियर फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन द अपने होम कंट्री में, या फियर ऑफ डेथ है, तो द वीज़ा मिला और नेक्स्ट मंथ आपका फियर ख़त्म हो गया, देन यू विजिट टू योर होम कंट्री, तो ये एक क्वेश्चन मार्क आपकी क्लेम पे और आपकी क्रेडिबिलिटी पे आ जाएगा। राइट। सेकंड ये है कि अगर आपको ह्यूमरस वीज़ा भी मिला है तो दोनों सूरतों में जब वापस आते हो तो जब केस वर्कर होता है या जो बॉर्डर एजेंसी वाले हैं उनके पास काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन होती है। तो मेरे ख्याल में मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि अगर आपकी लाइफ को ख़तरा था और अभी आप वहाँ पे वीज़ा मिला और फ़ौरन वहाँ चले जाएं। और सेकेंडली ये है कि आप पहले कंफर्म कर लेंगे क्या आपको वीज़ा रेफ्यूजी स्टेटस पे मिला है या अंडर द 10 ईयर्स। अगर 10 ईयर्स नहीं भी लिखे आए तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपको वीज़ा क्योंकि आजकल 20 चल रहा है और आपको आई थिंक 22 तो मेरे ख्याल 2.5 साल का वीज़ा तो होपफुली फिर आपको अंडर द 10 ईयर्स रूट उन्होंने कंसिडर किया है। अपने लेटर के लास्ट पेज पे या सेकंड लास्ट पेज पे देखें, वहाँ लिखा आएगा कि यू विल बी क्वालिफाइड फॉर सेटलमेंट आफ्टर 120 मंथ, तो इट मीन्स कि वो 10 साल बनते हैं। दोनों सूरतों में चेक करें। और या फिर अगर आपको अपील अलाउ हुई है तो आपका जो डिटर्मिनेशन है जज की तरफ से उस पर भी लिखा आता है कि आपने को क्यों अपील अलाउ हुई है। तो उन दोनों सूरतों में आपको ट्रैवल करने से एहतियात करनी चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन छोटे है। जी प्लीज। 2017 में मुझे यूरोपियन बेस्ड डिपेंडेंट पे परमानेंट रेजिडेंस मिल गया, उसका बायोमेट्रिक कार्ड भी आ गया। राइट। उसकी वैलिडिटी 27 तक है और 2019 में स्टेटस भी ले लिया। क्वेश्चन ये है कि ये एक कार्ड है कार्ड जिस पे परमानेंट रेजिडेंस लिखा है, अगर मैं अपनी कंट्री में चला जाता हूँ दिसंबर के बाद, वहाँ से ये कार्ड ट्रेस होंगे कि जहाँ ये इनवैलिड हो जाए, इसका क्या प्रोसीजर होगा? और उस पे कार्ड पे लिखा होता है मेंबर ऑफ ईयू मेंबर, और जो नए कार्ड हैं उस पे लिखा है ईयू सेटल स्टेटस। और आप 31 अगर यूरोप में जाना हो तो हम इस जो पहला रेजिडेंस कार्ड है जिस पे ईयू मेंबर लिखा हुआ है पे जा सकते हैं कि जहाँ वीजा लेके जाना पड़ेगा? सर मेन क्वेश्चन तो इंडिया से डिपार्ट करता तो कार्ड ट्रेस होगा 31 के बाद नहीं के जाने उसको। थैंक यू मेरे भाई। जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग हो रही है ये सारी चीज़ें जो हैं ये सेंट्रल और कनेक्टेड हैं एवरीवेयर। अब कोई चीज़ यहाँ पे करते हो तो वो यूरोप पे भी पता चलेगा क्या हो रहा है, वहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे इफ़ दे वांट गेट एक्सेस, यस द होम ऑफिस हैव अ राइट टू गेट द एक्सेस। अगेन जो लोग यहाँ पे सेटल्ड हैं या प्री सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो रहेंगे। जब वो कभी यूरोप में जाना चाहेंगे तो जो लॉज हैं कि आप शॉर्ट टाइम के लिए जा सकते हो, शहर के लिए काम की इजाज़त नहीं होगी, रहने की इजाज़त नहीं होगी, और आपको वहाँ पे अगर काम करना होगा, रहना होगा, पढ़ना होगा तो आपको प्रॉपर वीज़ा लेना होगा। वैसे गए हैं, ट्रांजिट किया, सैर करने गए, यस उसका डिफरेंट कैटेगरी होगी। लेकिन जो आपका सवाल है आई थिंक पर्टिकुलरली फॉर द ट्रेस आउट, यस आपकी जो आईडीज़ हैं या डिटेल्स हैं ऑफ कोर्स ये इनके पास एक्सेस है और सेंट्रल सिस्टम है काफ़ी हद तक। यूरोप के आपस में इनके ट्रीटीज़ हैं, एग्रीमेंट्स हैं। इवन किसी और कंट्री का नाम भी लो तो जो एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया हो, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, तो वहाँ पे भी अगर फिंगर प्रिंटिंग करते हो तो यहाँ पे जब आप करते हो तो वो उनमें कनेक्टेड हैं। ये चीज़ें आजकल डिजिटल एरा में हम रह रहे हैं तो एवरीथिंग आर कनेक्टेड। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम फरमाइए, सवाल क्या आपका? जी जी गुल भाई, कैसे आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपसे मिलें कैसी? ठीक जी भाई, मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चन करने थे। फर्स्ट तो ये था कि मैं फर्स्ट मेरे एक्शन के लिए मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है जिसमें हुई है, और सितंबर में उन्होंने मेरे से आईडीवी के जरिए मेरी पिक्चर और डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। तो अभी तक मुझे कोई आंसर नहीं आया। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो जून से
6 मंथ काउंट करेंगे या सितंबर से करेंगे? वीजा कौन सा अप्लाई किया क्योंकि आपने? अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई नहीं आया होगा। अच्छा, आपने वीजा कौन सा अप्लाई किया है जी? जी मैंने स्पाउस फर्स्ट एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है। स्पाउस की एक्सटेंशन। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखिए नॉर्मली तो ये होता है कि जब आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो तो फ्रॉम दैट डेट से 6 मंथ के अंदर एप्लीकेशन डिसाइड हो रही हैं, क्योंकि आपके फिंगरप्रिंट आपने कहा अभी लास्ट मंथ हुए हैं, होना नहीं चाहिए था, जल्दी होते, लेकिन एनीवे इसका मतलब ये हो कि आपके केस के ऊपर वो कंसिडर करें और उस पर काम हो रहा है। बट ऑन द जस्ट एज ए पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अब ये भी ड्यू टू कोविड-19 जो उससे पहले भी ये था कि जो मस्ट भी नहीं कि उन्हें लाजमी तो पे वो बाउंड हैं कि विद इन 6 मंथ डिसाइड करेंगे। सम केसेस उससे बियॉन्ड भी चले जाते हैं, लेकिन आप डोंट वरी, वेट करें। आपने अप्लाई कर दिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन की, फिंगरप्रिंट भी हो गए, अब इसका आपका केस है वो अंडर प्रोसेस है। जो भी डिसीजन होगा वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन मेरी थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है उसमें ये लगता है कि विद इन 6 मंथ आपके केस को डिसाइड वो कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो 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 जी फरमाइए सर, आप लाइव हैं, सवाल क्या आपका? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। या थैंक यू फॉर योर टाइम। छोटा सवाल है, मेरे को 2000 में इंडिया मिला था बच्चे का, इसमें इमीडिएटली में बच्चे लोग को ब्रिटिश है, मेरा वाइफ भी ब्रिटिश है। मेरे पास हमने और ये स्टैम्प मिला कि तो इंडिपेंडेंट नो लिमिट। अभी वो अभी बायोमेट्रिक आया, वो कार्ड लेना चाहिए, मैं अप्लाई किया, मैं बायोमेट्रिक दिया, वो कार्ड आया अभी 4 साल का इसने वो ये दिया कि एक्सपायरी डेट दिया। ये क्या कंटिन्यू में रख सकता हूँ या क्या कर सकता हूँ? आपके पास पहले वीजा कौन सा था मेरे भाई? वो इंडेफिनिटली नो लिमिटेड लीव टू रिमेन, राइट? अनलिमिटेड, ये लिमिट नहीं है, वो कभी भी आ सकते हैं। अभी मैं पैसा पर किया 248। कंट्रोल प्लीज़ इनसे नंबर ले लें, शायद बिल्कुल आवाज़ साफ़ नहीं आ रही, इनके बोले या ईमेल करें या नंबर लें, तो फिर मैं इनको एडवाइस करता हूँ। जी प्लीज़ बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी जी फरमाइए सर। हेलो सर, यू आर लाइव, व्हाट्स योर क्वेश्चन सर? जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फ्रेंड के पास ना जर्मन की नेशनलिटी थी, राइट, उसके बच्चों की भी जर्मन नेशनलिटी थी, वो लोग यहाँ, और बच्चे उसके इंडिया पढ़ते थे, उसकी वाइफ को जर्मनी पेपर थे, इंडियन पासपोर्ट पे वीजा वगैरह था, राइट। इंडिया से अभी 6 मंथ का वीजा लेके आई है, नहीं होता वो इंडिया से वो वीजा लेके आई है 6 मंथ का, अभी इंडिया से यहाँ आई। आप उनको कौन सा वीजा यहाँ पर अप्लाई करना और क्या करना चाहिए? ये उनके हस्बैंड के पास कौन सा वीजा मेरे भाई? उसके पास जर्मनी पासपोर्ट है, जर्मन से आया हुआ है, उसको प्री सेटलमेंट उसने अप्लाई खुद का किया हुआ है। ठीक ठीक वाइफ इंडिया से 6 मंथ का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें ये सिंपल वो ये प्रिंसिपल है कि जो जर्मन नेशनल हैं, उसका जो हस्बैंड है वो जर्मन नेशनल है और उसकी वाइफ बेशक वो इंडिया से आई है या जर्मनी से ट्रैवल करके आई है, उसको 6 मंथ का वीज़ा मिला है टू जॉइन द यूरोपियन नेशनल इन द यूके। अब यहाँ पे रहते हुए वो अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करेगी एज द डिपेंडेंट ऑफ द सेटल यूरोपियन नेशनल सेट इन द यूके। तो उसके अंदर उनको प्री सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। प्री सेटलमेंट दोनों को प्री सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो जर्मन आपके दोस्त हैं या भाई हैं वो भी अभी 5 साल पूरे नहीं हुए। अगर तो उनको यहाँ 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो सेटलमेंट अप्लाई करेंगे और उनकी मिसेस प्री सेटलमेंट। अगर दोनों अभी आए हैं तो दोनों को प्री सेटलमेंट अप्लाई करना पड़ेगा और 5 साल पूरे करते हुए दोनों फिर सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। एक्सक्यूज मी। हेलो जी फरमाइए मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन है अबाउट नेचुरलाइजेशन। राइट। मैं एज अ स्पाउस वीज़ा में आई थी 2012 में और फिर हमें 2015 में ILR मिल गया था। तो हमने
डायरेक्ट 1 ईयर लेटर हमने अप्लाई नहीं किया था, तो वो हमसे मिस हो गया। तो इसके बाद हमने 2-3 टाइम्स विजिट किया पाकिस्तान, जो ओवर स्टे हो गया था, जैसे हम अलाउड थे फॉर 540 डेज, बट हमने तकरीबन 590 डेज वहाँ पे ओवर स्टे किया था। ओके, अब आपका सवाल क्या है फिर? जी, अब आपका सवाल क्या मैडम? सवाल ये है कि मैं अब एनालाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। जैसे अब मैं 2018 में अब आई हूँ, तो मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री अब नहीं गई हूँ, जैसे अब 2 साल और 3 महीने हो गए हैं। राइट। या मेरे हस्बैंड ब्रिटिश सिटीजन है, और मेरे 2 बेटे जो हैं वो भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, और मैं और मेरा जो बड़ा बेटा है वो कैनेडियन पासपोर्ट हमारे पास। ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम। देखिए, लॉ ये कहता है कि अगर आप यहाँ पे सेटल होते हैं तो आप एक कंडीशन होती है, बिफोर यू अप्लाई द नेशनलिटी, आपने ये साबित करना है कि आप यू नेवर बिन आउट ऑफ द यूके मोर देन 450 डेज, और स्पेशल लास्ट जो 5 ईयर्स होते हैं, किसी ईयर भी आपने 90 डेज से ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री स्टार्ट नहीं किया। आप चेक कर लें, जो आपने बोला कि 50 में आपको सेटलमेंट मिला, फिर उसके बाद आप काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री चले गए, लिहाजा इस वजह से आपने नेशनलिटी अप्लाई नहीं की, 80 में दोबारा आ गए हैं, तो आपने वो डेट चेक कर लें या वो ईयर चेक कर लें जिसमें आपने 90 डेज से कम आउट गए हैं, और उस ईयर से लेके आपने 5 साल पूरे करने हैं, और 5 साल पूरे करते हुए फिर आप अपनी नेशनलिटी की अप्लाई करोगे। पहले 3 साल होता था जब ये जुलाई 12 के लॉ थे, लेकिन जब 12 जुलाई 2012 में लॉ चेंज हुए, सेटलमेंट 3 साल के बजाय 5 साल के चली गई, तो अब ये लॉ कहता है कि आपने लास्ट 5 साल का प्रूफ देना है कि यू नेवर बी ओवर स्टे, यू नेवर बी मोर देन 90 डेज आउट ऑफ द कंट्री, और आपका टोटल जो है वो 450 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस डेट से आप अप्लाई करोगे उसको 5 साल बैक काउंट कर लें। अगर 5 साल में ये आप कंडीशन पूरी कर रहे हैं तो आप अपनी नेशनलिटी की एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, जो से मैंने इंट्रो में कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग PSW के लिए क्वालिफाइड करेंगे जो समर 2021 में अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर या डिग्री फिनिश करेंगे, लेकिन जो लोग उससे पहले यहाँ पे अपना कोर्स मुकम्मल करते हैं वो अनफॉर्चुनेटली PSW के लिए फॉल नहीं करते। अगर कुछ लोगों ने कोई लेट से जनवरी, फरवरी और मार्च तक भी इवन कोर्स पास कर लेते हैं, तो मुझे जितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है लॉ की, अनफॉर्चुनेटली उनके लिए मुश्किल होगा टू गेट द वीज़ा अंडर PSW। इसलिए लॉ बड़ा क्लियर है कि जो लोग सितंबर सेशन या अक्टूबर सेशन 2020 में अपना एडमिशन ले रहे हैं और समर 2021 के बाद कोई भी कोर्स फिनिश करते हैं तो वो क्वालिफाइड करेंगे PSW के लिए। इसी बात के साथ जिन्होंने हमें कॉल किया सराहा उनका शुक्रिया। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं उनके लिए मच अप्रिशिएट, थैंक यू। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।